Hello everyone, you are watching your favorite channel, The Magic of Maths by Rumani. Students, today we are going to do a very interesting activity related to place value, face value and the number name. And इस activity को करने के लिए students you need simple white paper cups. आपने ऐसे के paper cups लेने हैं and just a pack of sketch pens. So after doing this activity, you will be able to learn about the place value, face value and the number name. So let's start the activity. To do the simple activity, you need some paper cups and the colored sketch pens. And बेटा आपने paper cups ऐसे के लेने हैं so that कि ये बिल्कुल एक दूसरे के अंदर ना जाएं. यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा gap created हो जिसके ऊपर हम numbers लिख सकते हैं. So we will take the first paper cup and then we will take any one colored sketch pen. For example, I'll take red and then we will write the numbers. Students, you know that there are 10 digits from 0 to 9. Normally when I ask the students the number of digits कितने होते हैं, वो 1 से लेकर 9 तक काउंट करते हैं and they forget the 0. So 0 से लेकर 9 तक आपके पास टोटल 10 digits होते हैं. So आपने फर्स्ट अपना पेपर कप लेना है, उसकी बैक पे आपने कोई भी एक कलर्ड स्केच पेन लेना है and you will write units place or some can even write it as ones place. हम इसको ones place भी कहते हैं या units place भी कहते हैं. So this is my cup of red color which is for the units place. Now what will I do is, here I will write all the 10 digits starting from 0. ठीक है बेटा? So I will write 0. Then I will write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and then the last digit 9. So my units digit cup is ready. Then I will take the other colored sketch pen and take another cup. ठीक है बेटा? अब मैंने ये second लिया. I will take any other color. You can take any color of your choice. And इसके पीछे आप लिखोगे बेटा tens. So ये वाला जो आपका कप है that will be depicting the tens digit, जो tens place पे है. And आप सबको पता है कि tens digit जो होता है, आप इसके नीचे 10 ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो. एंड आपको पता है कि 10 में कितने जीरोस आते हैं? 1. सो अब आपने क्या करना है, टेंस वाले ग्लास में फिर से पहले आपने अपनी 10 डिजिट्स लिखनी है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So these are my tens digit. And अब इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, ये जो आपने लिखे हैं डिजिट्स, इनके आगे सबके आगे आपने एक एक जीरो लगा देना है. ठीक है? सो व्हेन वी विल डू दिस एक्टिविटी, आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा कि हम इसके पीछे एक एक जीरो क्यों लगा रहे हैं. सो दिस इज माय टेंस ग्लास जिसमें हर डिजिट के पीछे मैंने एक एक जीरो लगा दिया. ठीक है बेटा? अब इसी तरह हम बनाएंगे अपना हंड्रेड्स डिजिट वाला ग्लास. Students, after making ones and tens glass, we will start with the glass of hundreds. We will take another colored sketch pen and we will take our glass and we will write hundreds. Okay? And आपको पता है कि जो 100 होता है, it has 2 zeros. तो इसके साथ मैं यहाँ पे 100 लिख के ब्रैकेट में I am writing 100. बेटा इसकी एक्यूरेसी के लिए what you will do is, आप जो भी अपना ग्लास बनाओगे उसमें ये ग्लास पुट करके try to write the digit in front of the digit. ठीक है? तो ये 0, I once again will write all the digits
that is from 0 to 9, all the 10 digits I'll write them again and make sure कि आपकी जो spacing है, जो numbering है, वो बिल्कुल accurate हो and digits के सामने ही आपकी digits आए. So this is the way, I think, yeah, this is 8 and this is 9. एंड अब आपने क्या करना है, जो आपका हंड्रेड्स का ग्लास है उसमें आपने हर डिजिट के पीछे दो दो जीरोस डालने हैं बेटा. तो ये आपका किसका ग्लास बन जाएगा, हंड्रेड्स वाला ग्लास. सो आफ्टर एवरी डिजिट यू विल पुट टू टू जीरोस. सो दिस इज डिपिक्टिंग 300 लाइक 400. तो आपने हर डिजिट के पीछे टू जीरोस डाल देने. सो ये आपका बन जाएगा हंड्रेड्स का ग्लास. इसी तरह से हम थाउजेंड्स का, 10,000 का, लाख और 10 लाख का ग्लास बना लेंगे. सो दिस इज रेडी, द हंड्रेड्स ग्लास विद द ब्लू कलर्ड स्केच. ठीक है बेटा, तो ये मेरा हंड्रेड्स का ग्लास बन गया. ये मेरा वंस है, ये टेंस है और ये हंड्रेड्स है. Let's now make the glass of thousands. So at the back I will write thousands and 1000 has how many zeros? 3. So I have put 3 zeros. Again I'll take any glass, I will put it in and I'll write the digits in front of the digits. All the 10 digits I'll write them again. 0, 1, and try when you are writing that your glass doesn't moves, because अगर वो move कर जाएगा बेटा तो वो digits की spacing जो है वो wrong हो जाएगी. So 2, then 3, then 4, 5, 6, 7, 8 and 9. And now you can remove your hundreds glass, you can place it back. and जो आपका thousands का glass है इसमें after every digit you will put 3 zeros, because जो भी number digit thousands place पे होता है it is followed by 3 zeros. So I will put 3 zeros after every digit. So beta, this is a very easy activity which everyone can easily make, and इससे आपको place value, face value दोनों बहुत easily समझ आ जाएंगे. So this is a must activity which all the students must make to understand the concept of the place value and the face value. So after every digit I have put 3 zeros. So my thousands glass is ready. Let's prepare the next glass, and that represents 10,000s. So I will write 10,000s over here, and you know beta that 10,000 has how many zeros? 4 zeros. Yes. So I will put 4 zeros. So I will take any glass, you can take any glass and put the all 10 digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and the last digit is 9. And after putting these 10 digits, how many zeros you will put after every digit? Yes, हर digit के बाद now you will put 4 zeros, because ये हमारे पास 10,000s का ग्लास है और जो भी डिजिट 10,000s की प्लेस पे होता है इट इज फॉलोड बाय 4 zeros. सो आफ्टर एवरी डिजिट बेटा यू विल पुट 4 zeros. ठीक है, सो दिस इज 80,000, लाइक 90,000 एंड सो ऑन. ठीक है, तो हर डिजिट के बाद हम 4 zeros डालेंगे एंड वी आर रेडी विद आवर ग्लास ऑफ 10,000s. So the last class which we are going to prepare represents the place value of lakh. ठीक है, so this is never ending beta. You can take it up to many digits, whatsoever is feasible for you. And you know that 1 lakh has how many zeros? 5 zeros. So I will put
5 zeros. Okay, again I can change the sketch pen because this is bit light. So I will take any glass, I will put it in, and first of all I will write all the 10 digits: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So for preparing my lakhs glass, how many zeros will I put after every digit? Yes, after every digit I will put 5 zeros. 10,000s में हमने 4 zeros डाली थी और अब हमने कितनी कितनी zeros डालनी है? 5 zeros after every digit. ठीक है बेटा, तो इससे हमारा 10 lakhs वाला ग्लास रेडी हो जाएगा. This is a very interesting activity which small kids can do to understand the concept of the place value and the face value. I hope you are enjoying the activity and you are doing it side by side. आप इसको साथ साथ करो and it will be a very interesting activity for you, जिससे आपका बिल्कुल basic concept clear हो जाएगा students. So I have put 5 zeros after every digit. So my lakhs glass is ready. So students, after preparing these glasses, how will we understand the activity? हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने अपना हाईएस्ट प्लेस वैल्यू वाला ग्लास लेना है जो कि हमारा लैक्स है. देन आपने 10,000s, आफ्टर दैट थाउजेंड्स, नेक्स्ट हंड्रेड्स, उसके बाद टेंस एंड देन एट द लास्ट यू विल पुट द ग्लास ऑफ वंस. अब ये करने के बाद आपने क्या करना है? आपने अपने ग्लासेस को जैसे मर्जी रोटेट कर देना. ठीक है, रोटेट इट द वे यू लाइक. अब जो बिल्कुल एक लाइन में हमारे सामने नंबर्स बन रहे हैं, हमने उसकी नंबर नेम रीड करना है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये एक लाइन में नंबर्स अरेंज कर लिए. ठीक है, नाउ आई हैव टू रीड दिस नंबर. मुझे ये नंबर रीड करना है. सो ये जो 2 है ये वंस प्लेस पे है, 4 टेंस प्लेस पे है, दिस 6 इज हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s एंड लाख. सो जब आपके पास बेटा क्वेश्चन आता है कि आपने प्लेस वैल्यू बतानी है, फॉर एग्जाम्पल आपने प्लेस वैल्यू बतानी है 6 की, सो आप ये रिमूव करोगे ग्लास, 6 के पीछे क्या है? 100. सो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 600. फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाले 1 की प्लेस वैल्यू बतानी है, 2 1 है यहाँ पे, पर यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है, तो आपने ये वाले 1 की प्लेस वैल्यू बतानी है. सो 1 के पीछे कितने जीरोस हैं? 4. सो ये वाले 1 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 10,000. और अगर ये वाले 1 की बतानी है, देन इसके पीछे कितने जीरोस हैं? 3. सो इस वाले 1 की प्लेस वैल्यू है 1000. जो बेटा वंस डिजिट पे हैं, यूनिट्स डिजिट या वंस डिजिट, उनकी प्लेस वैल्यू रिमेन्स द सेम. सो इसकी प्लेस वैल्यू 2. 4 की बतानी है, देन यू विल रिमूव द ग्लास एंड इट इज एट टेंस प्लेस, सो इसकी प्लेस वैल्यू आ गई 4. एंड अगर ये वाले 7 की बतानी है, इट हैज 5 zeros, सो ये वाले 7 की प्लेस वैल्यू है 7 लाख. अब हम इसको रीड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ये दोनों थाउजेंड्स के हैं, ये लाख का है, एंड ये तीनों, ये हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस. तो ये वाले 3 नंबर्स हमने एक साथ रीड करने हैं, लाइक 642. ये वाला है थाउजेंड्स एंड 10,000s, ये हमने इकट्ठे रीड करने हैं, सो 11,000. एंड ये वाला है लैक्स का, सो वी विल रीड एज 7 lakh. सो वी विल ऑलवेज स्टार्ट द नंबर नेम फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू. सो हम इसको रीड करेंगे 7,11,642. एंड जब आपके पास बेटा क्वेश्चन आता है फेस वैल्यू, व्हाट इज फेस? फेस क्या होता है? आपकी शक्ल. तो हर नंबर की जो फेस वैल्यू होती है वो सेम होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस. तो अगर मैं आपसे 4 की या 6 की या 1 की, 7 की फेस वैल्यू पूछती हूँ, तो 7 की फेस वैल्यू इज 7, 1 की फेस वैल्यू 1, इस 1 की भी 1, इस 6 की 6, 4 की 4 और 2 की 2. तो इट डजेंट मैटर्स कि वो कौन सी प्लेस पे बैठा है, कि वो वंस प्लेस पे है, टेंस पे है, हंड्रेड, थाउजेंड्स और 10,000s और लाख, इट डजेंट मैटर. तो फेस वैल्यू हमेशा डिजिट की क्या रहती है? सेम एज द वैल्यू ऑफ द डिजिट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन.
वो पोजीशन मैटर नहीं करती, फेस वैल्यू सेम। एंड प्लेस वैल्यू, जिस भी पोजीशन पे वो होता है उस पोजीशन के आपने नंबर ऑफ जीरोस काउंट करके, फॉर एग्जांपल अगर वो थाउजेंड्स पोजीशन पे है तो यू नो 1000 हैज 3 जीरोस, तो आप उसमें उस डिजिट के पीछे कितने जीरोस लगा दोगे? 3। तो लेट्स डू सम अदर क्वेश्चन, लेट्स चेंज। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 4? लेट्स रिमूव द ग्लास। इसकी प्लेस वैल्यू है 400। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 5? It is 50,000. What is the place value of this 6? It is 6,000. What is the place value of this 2? It is 20. What is the place value of this 9? It is 9 lakh. So, place value is clear. Now, let's read this number. Starting from the highest place value, 9 lakh 56,429. So students, this is a very easy activity. You can play and you can learn about the place value, you can learn about the face value, you can learn about the number names. So I hope you enjoyed this activity and all of you should definitely make this activity. Thank you students and have a nice day.